بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری آزمائشیں ایک طرف اور اپنی اولاد کی خواہشات پورا کرنے کا دکھ ایک طرف ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں شدید دھوپ اور تپش میں سارا دن میں اینٹیں بناتا رہتا۔ جب شام ہوئی تو ٹھیکیدار نے 400 روپے دے کر مجھے چھٹی دے دی۔ میں کبھی ان 4 پیسوں کو دیکھتا اور کبھی سامنے ریڑھیوں پر لگے طرح طرح کے پھلوں کو، جن کو خریدنے کی اجازت میری جیب نے آج تک نہیں دی تھی۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا کیونکہ مجھے آٹا خریدنا تھا۔ جیسے تیسے ان پیسوں سے ایک تھیلی آٹا خریدا اور گھر کی جانب چلا آیا۔ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی جب میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا تھا۔ میری تینوں بیٹیاں اور بیوی زمین پر بیٹھے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ چٹائی پر سادہ پانی اور ایک سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ افطاری کا وقت ہوا تو ہم سب نے سادہ پانی کے ساتھ کل کی بچی روٹی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی میں مجھ جیسے کئی خاندانوں کا یہی حال ہو چکا تھا۔ سارا دن محنت کرنے کے بعد لال رنگ کے چند نوٹ ہمارے سامنے پھینکے جاتے۔ ٹھیکیدار چند نوٹ دے کر بھی احسان کر رہا ہوتا۔ چند روز یوں ہی گزر چکے تھے۔ جیسے تیسے روکھی سوکھی کھا کر ہم گزارا کرنے لگے، مگر آہستہ آہستہ ہمارے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میری بیوی اب اکثر مجھ سے لڑنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے اب اور بھوک و افلاس برداشت نہیں ہوتی۔ اگر تم زیادہ کما کر نہیں لا سکتے تو مجھے اجازت دو، میں بھی اپنے لیے کوئی نوکری ڈھونڈ کر کام کر لوں۔ کم از کم ہماری بچیوں کو 2 وقت کا اچھا کھانا تو نصیب ہو۔ مگر میری غربت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی بچیوں سے کوئی کام کرواؤں۔ آج بھٹی پر کام اچھا نہیں چلا تو ٹھیکیدار نے دہاڑی بھی نہیں دی تھی۔ میں نے اس کی کافی منتیں سماجتیں کی مگر وہ نہ مانا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں جب بے بسی کی انتہا پر پہنچا تو رو پڑا۔ کتنی ہی دیر میں وہیں بیٹھ کر منہ چھپائے روتا رہا۔ میری جیب میں تو ایک آنا موجود نہیں تھا۔ میں کس منہ سے گھر خالی ہاتھ جاتا؟ میں آج اپنے گھر والوں کے لیے افطار کا سامان کہاں سے لے کر جاتا جو صرف ایک سوکھی روٹی پر منحصر تھا؟ پتہ نہیں لوگ کیسے بچے کھانے کو باسی سمجھ کر پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے گھر تو کبھی ایک نوالا بھی نہیں بچتا تھا۔ اس وقت میرا دل پھٹنے لگا تھا جب میری بچی دسترخواں پر گری روٹی کے جلے ٹکڑے چن چن کر منہ میں ڈالتی کہتی، اماں یہ کڑوے ہیں تو کیا ہوا، لیکن مجھے مزے کے لگتے ہیں۔ وجہ شاید یہ تھی اس کی بھوک مٹانے کے لیے ایک روٹی نہ کافی تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں نے اور میری بیوی نے بس آدھی آدھی روٹی ہی کھائی تاکہ بچیوں کا پیٹ بھر سکے، لیکن کم بخت پیٹ کی آگ ایندھن مانگتی ہے، نہ ملے تو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ میں نے تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو بس کلام پاک ہی سکھایا تھا، وہ بھی اس لیے کہ مسجد میں ناظرے کی تعلیم مفت تھی۔ گورنمنٹ اسکول پڑھائی تھی تو مفت، مگر کم بخت دور بہت تھا۔
आने जाने का खर्चा मेरे बस में न था। गुर्बत एक बहुत बड़ी आजमाइश है। मैंने कुछ दोस्तों से उधार पैसे भी मांगे, मगर सब ने यही कहा कि पहले पिछला उधार वापस करो मुनव्वर मियाँ, तभी अगला हिसाब भी देंगे तुम्हें। मैं बोझल कदमों से घर के जानब चला आया। कदम साथ देने से इनकारी थे, मगर मैं हिम्मत करके घर दाखिल हुआ। आज भी मेरा उतरा चेहरा और खाली हाथ देखकर बीवी तो हिपर ही पड़ी। वो गुस्से से मेरे पास आई और बातें सुनाने लगी। आज भी खाली हाथ आए हो? अगर पाल नहीं सकते थे तो पैदा ही ना करते। इन लड़कियों को आज फिर सादा पानी से ही हमें इफ्तियार करना पड़ेगी। मैं बता रही हूँ मुनव्वर, अगर तुमने यही सब जारी रखा ना तो एक दिन जहर लाकर खुद भी खा लूंगी और अपनी बेटियों को भी खिला दूंगी। फिर बैठे रहना अपनी दो कौड़ी की नौकरी लेकर। बीवी की बात सुनकर मेरी रूह लरज गई। मैं कमजोर मर्द बिल्कुल भी नहीं था, मगर चट्टान की मानद रह रह कर भी मैं थक चुका था। बीवी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं चेहरे पर हाथ रख कर रोने लगा। मुझे रोता देख कर बीवी चुप सी हो गई, मगर मेरी बेटियां तो जैसे अपने बाप को रोता देख कर तड़प ही गई थी। वो मेरे पास दौड़ी आई और मुझे चुप करवाने लगी। कोई मेरे हाथ चूम कर रोते हुए दिलासा दे रही थी, तो कोई मेरा बाजू पकड़ कर कह रही थी कि कोई बात नहीं अब्बा, हमें आपसे कोई गिला नहीं। आप हमारे लिए दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। बड़ी बेटी ने मेरे साथ लगकर कहा। छोटी बेटी उस वक्त बस 7 वर्ष की थी। कहने लगी, अब्बा मुझे तो आज भूख ही नहीं लग रही, मैं बस पानी ही पी लूंगी। आप मत रोएं। खुश्क होठों पर उसने जबान फेर कर तर किया था। मेरा दिल माही बे आब की तरह तड़प कर रह गया था। मैं जानता था कि वो भूखी है। उनके अल्फाज मेरे दिल को तड़पा गए थे। इफ्तारी के वक्त जब पड़ोस से पकोड़ों और दूसरे लवाजमात की खुशबुएं उठती, तो मेरी बच्चियां दीवार की मंडेर से पड़ोस में झांकने लगती। बड़ी तरसी हुई नजरों से भरे दस्तरख्वां को देखती। आज तो वैसे भी इफ्तियारी में पानी के सिवा कुछ न था, इसलिए पानी पीते ही वो मंडेरे से झांकने लगी। छोटी बेटी मंजली बेटी से कहने लगी, देखो आपकी आधे पकोड़े तो जमीला खाला ने कचरे के डब्बे में डाल दिए हैं, और कब वो कचरे का डब्बा गेट से बाहर फेंकने जाएगी। चल आप वहीं से उठाकर खा लेते हैं, कसम से बड़ी भूख लगी है। बेटी की बात ने मुझे फिर से अश्कबार किया था। अब ये नौबत आ चुकी थी कि मेरी बच्चियां कचरे से चुनकर पेट भरती। न जाने पड़ोसियों को नींद कैसे आ जाती जब उनका पड़ोसी भूखा सोता है। जाय करने की बजाय अपने वो पड़ोसी याद क्यों नहीं आते जो सूखी रोटी के वाले पानी से अंदर उतारने पर मजबूर होते हैं। मैं घर से बाहर निकल गया। सामने ही बस अड्डा लगा था। मैंने आने जाने वाले सवारियों की मिन्नत समाजत की कि मुझसे अपना सामान उठवा ले, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। उनमें चंद एक को मुझ पर तरस आ ही गया था। 2-3 घंटों में मैंने 200 रुपए कमा लिए थे। मैंने जल्दी से आटा लिया और घर में दाखिल हो गया। बीवी के हाथ में आटा थमा दिया। उसने गमगीन नजरों से मुझे देखा
और फटाफट गूंदने लगी। बच्चों ने रोटी खाई तो मेरे अंदर चैन उतरा था। मैं रात को जब अपने बिस्तर पर लेटा तो बार बार बीवी के वही अल्फाज जहन में गर्दिश कर रहे थे। मेरी बीवी जज्बाती थी, गुस्से की बहुत तेज थी। कहीं किसी रोज वो सच सच ही कोई ऐसा कदम ना उठा ले। मेरी कुल कायनात तो मेरी बीवी बच्चे ही थे। ये बात मुझे बेचैन कर चुकी थी। अगले रोज मैंने डबल मेहनत करना शुरू कर दी थी। मैं अपनी मजदूरी से हटकर भी भट्ठे पर काम करने लगा था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उस दिन ठेकेदार ने मुझे मजदूरी दी और मैं खाने का कुछ सामान लेकर घर के जानिब रवाना हुआ। मैं खुश था कि आज मेरी बेटियां बासी और किसी का फेंका हुआ खाना नहीं खाएंगी। मैं जब घर पहुंचा तो आज मामूल से हटकर सबके चेहरों पर रौनक थी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया था। इफ्तारी का वक्त हो चुका था। दस्तरख्वां की जानिब जब मेरी नजर पड़ी तो ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि दस्तरख्वां पर तरह तरह के खाने रखे हुए थे और मेरी बीवी बेटियां बड़ी ही खुशी दिखाई दे रही थी। पकोड़े, समोसे से चन्ना चाट, रूह अफ़ज़ा का शरबत देखकर मैंने हैरत से पूछा कि इतना ज़्यादा और इतनी अक़साम का खाना आखिर कहाँ से आया है? मेरी बात के जवाब में मेरी बीवी बोली कि एक अल्लाह वाला आया था जो हमें ये खाना देकर गया है। मैं भी इत्मीनान से मुस्करा गया। शायद किसी नेक बंदे ने इफ्तियारी करवाई होगी और खाने का सामान हम जैसे मुस्तहकीन तक पहुंचाया होगा। चलो, अल्लाह ने मेरी सुन ली। बेशक वो जात ही अपने बंदों को अता करता है। मैंने आज 400 की बजाय 800 कमाए थे। सारे पैसे बीवी के हाथ में रख दिए। मैंने कुछ संभाल लिए कि इस बार ईद पर बच्चों को लंडे से कपड़े खरीद देंगे। मेरी बीवी ने भी खुशी से पैसे दुपट्टे के पल्लू से बांध लिए थे। आज मेरे बच्चों ने इफ्तियारी खूब सैर होकर की थी। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया और फिर हम सब ने सैर होकर खाना खाया था। रात को मैंने बीवी से कहा कि अब वो परेशान न हो, मैंने डबल मेहनत शुरू कर दी है, उसे अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन न जाने क्यों वो बार बार किसी ख्याल के जेर असर मुस्कुराए जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो यूं चुटकी जैसे मेरी बात सुन ही ना रही हो, किसी और ख्याल में खोई हो। मैंने कहा, इतनी खुश क्यों हो? कहने लगी, आज बड़े महीनों बाद मेरी बच्चियों ने पेट भर कर खाना खाया है, क्या मैं खुश भी ना हूँ? मैं गौर से उसे देखने लगा, सोचने लगा, अल्लाह ने औलाद भी क्या चीज बनाई है। बच्चा दुनिया में आते ही माँ बाप की सोच और जज्बात को बदल देता है। बच्चों के पेट भरे हों तो माँ बाप को बड़े सुकून की नींद आती है, और अगर एक भी बच्चा भूखे पेट लेट जाए तो एक पल भी चैन नहीं आता। बहरहाल मैं भी दिन भर का थका हुआ था, इसलिए सो गया। अब तो ये रोज का मामूल ही बन चुका था। मैं जब भी घर आता, आगे दस्तरख्वां खाने से सजा होता और मेरी बीवी बच्चियां बड़े मजे से इफ्तियारी कर रही होती थीं। मैं पूछता कि सब कहाँ से आया है, तो बीवी कहती कोई अल्लाह का बंदा दे गया है। न जाने क्यों अब मुझे बीवी का ये जवाब मुतमईन नहीं कर रहा था। मेरी बीवी भी काफी खुश रहने लगी थी। वो ना अब मुझसे लड़ती थी और ना ही बात बात पर ताने देती थी। मेरी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र बमुश्किल 14 साल थी, उसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। दिन ब दिन वो कमजोर होती जा रही थी।
चुप चुप भी रहने लगी थी। मैं जब भी बीवी से उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहता तो वो मुझे टाल देती, कहती तुम फिक्र ना करो, खुद ही ठीक हो जाएगी। मुझे पहली हैरत का झटका ये सुनकर लगा था मेरी बीवी तो बच्चों की बहुत परवाह किया करती थी, लेकिन मुझे अब बीवी का रवैया कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। रात को वो न जाने क्या सोच सोच कर मुस्कुराती रहती। जब मैं वजह पूछता तो यूं चूक जाती, जैसे वो मेरी बात सुन ही ना रही हो, किसी और के ख्यालों में खोई हो। फिर मुझसे पूछने लगती कि तुम क्यों अभी तक जाग रहे हो, सो जाओ, सुबह काम पर जाना है। एक बार मैं सुबह मजदूरी करने के लिए जाने लगा तो मुझसे कहने लगी, मुनव्वर आज के बाद तुम राशन की फिक्र मत करना, ना ही आटा लेकर आना, पहले ही आटा ढेरों जमा हो गया है। रोज तो वो अल्लाह का बंदा हमें सामान दे जाता है। मुझे अब ये बातें काफी परेशान करने लगी थी। आखिर कौन अल्लाह वाला था जो रोजाना इतना खाना हमारे घर देकर चला जाता था? और मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरी बीवी उसे डॉक्टर के पास ले जाने से कुतरा रही थी? एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया और कपड़े निकालने की गर्ज से अलमारी खोली, मगर ये देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि उस अलमारी में मेरी बीवी और बेटी के चंद ऐसे कपड़े भी पड़े थे जिन्हें देखकर मेरा दिमाग घूम के रह गया था। हैरत की बात तो ये थी, मुझ पर जो बात वाजे हो रही थी वो मेरी गुर्बत पर गहरी चोट थी। मुझे अलमारी खोले देख कर बीवी फौरन मेरे पास आई और अलमारी को बंद कर दिया और फिर गुस्से से बोली कि अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, खुद अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी? बीवी की रंगत उड़ी हुई थी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। रोजाना दस्तरख्वां पर रंग रंग के खाने और फिर मेरी बड़ी बेटी की बिगड़ती तबीयत ने मुझे वैसे ही कई सवालात का शिकार कर रखा था। और अब अलमारी में वो कपड़े देखकर मुझे शक गुजार था, दाल में कुछ काला तो जरूर था, वरना ना मेरी बीवी का रंग क्यों उड़ता? मेरे जहन में कई सवालात उठ रहे थे। मैं शक्की मिजाज मर्द बिल्कुल भी नहीं था, मगर अचानक से होने वाली इस तब्दीली ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया था। मेरी बीवी ने अलमारी लाक कर दी। मुझे अपने काम से देर हो रही थी। मैंने सोचा कि रात को उससे पूछूंगा। दिन भर काम के दौरान भी मैं बीवी के बारे में ही सोचता रहा। जैसे जैसे ख्यालात मेरे जहन से गुजर रहे थे, मेरी बेचैनी और बेकरारी बढ़ने लगी थी। आज तो रात के खाने में मेरी बीवी ने मुर्गी का सालन बनाया था। आज शदीद भूख के बावजूद मुझसे ठीक से खाया नहीं गया। सहरी भी मैंने सालन होने के बावजूद सूखी रोटी खाकर ही की थी कि मुझे इतनी भूख नहीं है। 2 दिन यूं ही गुजर चुके थे। एक रोज जब घर गया तो दोबारा दस्तरख्वां पर खाने सजे थे। मैंने गुस्से से बीवी को कहा कि आखिर कौन अल्लाह वाला है जो पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ हम पर ही मेहरबान है? मेरी बात सुनकर बीवी के साथ साथ मेरी बड़ी बेटी के चेहरे पर भी कई रंग आकर गुजरे थे। बड़ी बेटी सो पर बड़बड़ा कर बोली कि अब वो अल्लाह वाला बहुत नेक शख्स है। उसने मन्नत मानी थी कि अगर पूरी हुई तो एक गरीब खानदान को पूरा रमजान इफ्तारी करवाऊंगा। बस इसीलिए रोजाना ये इफ्तारी का सामान वो भेज देती हैं। मुझे किसी तौर पर भी बीवी की बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने उन्हें सख्ती से मना करते हुए कहा कि आइंदा के बाद मुझे कोई भी बाहर का लाया खाना घर में ना मिले। तुम लोग वही खाओगी जो मैं कमा कर लाऊंगा। मेरी बात सुनकर बीवी एक पल में गुस्से हो गई और मुझे बातें सुनाने लगी। आज एक बार फिर उसकी यही धमकी थी कि
वो खुद भी जहर खा लेगी और बच्चियों को भी जहर दे देगी, क्योंकि मैं अब उस पर शक करने लगा हूँ। अगर कोई हमारी मदद कर ही रहा है तो बजाय शुक्र करने के शक कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो कौन शख्स था जो मन्नत के पैसे सिर्फ हमें ही देकर जाता, और वो इतने थे कि मेरी बीवी इतना कुछ बना लेती थी। कहीं मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही थी। मैं इसी सोच में मगन जब अपने कमरे में जाकर लेटने लगा तो मैंने देखा कि मेरी चारपाई के तकिए में कुछ उभरा हुआ है। मैंने सरसरी सा हाथ फेर कर वो जगह महसूस करके तकिए के गिलाफ में हाथ डाल दिया। मेरे हाथ से कोई चीज टकराई थी। जब निकाल कर सामने की तो मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि वो तो हजार हजार के कई नोट थे। मैं एक टक इन पैसों को देखने लगा। मैंने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे और ना ही कमा कर घर लाए थे। आखिर ये पैसे यहाँ छुपा कर किसने रखे थे? मेरी लाइल्मी में यहाँ आखिर ऐसा क्या हो रहा था? किसके बदौलत इन्हें इतने पैसे दिए गए थे? मैं अगर दो टोक बीवी से पूछता तो यकीनन वो मुझे नहीं बताती। इसलिए मैंने ठान ली कि अब खामोशी से इनकी हर हरकत नोट करके मामले की तह तक पहुंचूंगा। अगले रोज मैं जल्दी घर लौटा था, मगर घर के दरवाजे को देखकर मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि वहां तो ताला लगा था। आखिर इस वक्त मेरी बीवी बच्चियों सुमैत कहाँ जा सकती है? मैं सोच में पड़ गया और दरवाजे से कुछ दूर होकर गली के नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। मेरे दिल की ये हालत थी कि बेचैनी से मैं बेकल सा हो चुका था। काफी देर मैं वहीं खड़ा रहा, ये सोचता रहा कि वो कहाँ जा सकती है। मैका तो उसका था नहीं, फिर वो कहाँ गई थी? मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठने लगे थे। मैं बहुत देर तक वहां खड़ा था कि वहां मेरा एक जानने वाला मुझे मिल गया। मुझे अपने साथ पान की दुकान पर ले गया। मुझसे घर के हालात के बारे पूछने लगा। अब मेरे हालात कोई ढके छुपे तो नहीं थे। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अब कुछ बेहतर है। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। फिर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, खूबसूरत बीवी और खूबसूरत जवान बेटी के घर अगर यूं लोग अनायतें होने लगे तो समझ जाओ मुनव्वर मियाँ के दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। न जाने क्यों, लेकिन मेरी गर्दन और नजरें यूं झुक गई जैसे मेरी बीवी और बेटी का जवां और खूबसूरत होना मेरे लिए कोई गंदी गाली बन गया। आज तक मेरी बीवी बिना किसी अशद जरूरत के गेट के पास खड़ी नहीं हुई थी, और मैं उसके हुस्न के कसीदे एक गैर मर्द के मुंह से सुन रहा था। मुझ जैसे शख्स के लिए ये मेरी गैरत पर जोरदार जिल्लत का तमाचा था। मैं जिन कदमों से घर तक पहुंचा था, ये मैं जानता था। इस बार घर के दरवाजे पर ताला नहीं था, वो खुला हुआ था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बेटियां और बीवी थकी मानद सेहन की चारपाई पर बैठी थी। सेहन में एक नीले रंग का बड़ा शॉपर रखा हुआ था, जिसमें खाने पीने का सामान था। मुझे वक्त से पहले घर पर देखकर मेरी बीवी की रंगत उड़ी थी और मैं साकत हो चुका था। मुझसे मेरी बीवी और बेटियां झूठ बोल रही थी कि कोई अल्लाह का बंदा मुफ्त में उन्हें घर पर राशन देकर जाता है। मेरा दिल बुरी तरह टूटा था। उनकी खातिर मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, और ये न जाने मेरी पीठ पीछे क्या कर रही थी। मैं अपने आंसू हलक में उतारने लगा। मेरी बीवी उठकर मेरे पास आ गई। समझे से मेरी तबीयत के बारे पूछने लगी कि मैं जल्दी क्यों घर आ गया। मैंने उसे
तासफ से देखा था। मैंने कहा, कहाँ से आ रही हो तुम? मेरे इस सवाल पर वो बुरी तरह से बदहवास हुई थी। कहने लगी, आप क्या पहले भी घर आए थे? मेरी बच्चियों की भी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने जिन नजरों से उसे देखा था वो खौफ ज़दा सी हो गई। मैं गरीब जरूर था लेकिन था इंसान। मैंने बीवी को पेट भर रोटी खिलाने में कमी तो शायद अपने हालात की वजह से कर दी थी, लेकिन कभी भी गुस्से से पेश नहीं आया था। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। पहली बार मेरा लहजा उस पर बुलंद हुआ था। मेरी बच्चियां चार पाई पर सहमी बैठी थी। वो कहने लगी कि मुझे किसी पड़ोसन ने बताया था कि कहीं राशन बट रहा है, इसलिए मैं वहां चली गई थी। मैंने एक नजर उसके लिबास पर डाली, फिर बच्चियों की तरफ इशारा किया। इस हुलिये में मेरी बात पर वो सर झुका के रोने लगी, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, मुझे माफ कर दो मुनव्वर, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता न था। मैंने पहली बार उसका हाथ बुरी तरह से पीछे झटका था। वो पुराने बुसीदा कपड़ों में मलबूस भी। मेरी बच्चियां भी ऐसे ही हुलिये में थी, बाल बिखरे रखे थे। चंद दिन पहले भी मैंने ऐसे ही कपड़े बीवी के अलमारी में देखे थे। मेरे काम पर जाने के बाद वो खुद भी पुराने फटे कपड़े पहनती और बच्चों को भी वही पहनाती, फिर बड़ी काली चादर ओढ़कर सड़कों पर भीख मांगने चली जाती। लोग उसकी गुर्बत पर तो पता नहीं, मगर उसकी खूबसूरत चेहरे पर नजर डालकर उसे पैसे दे जाते। मेरी बड़ी बेटी भी बेहद हसीन थी, इसलिए मंझले उसे पैसे देते हुए बेहुदा जुमले कस देते, जिसकी वजह से वो ज़हनी अजियत का शिकार होने लगी थी। मेरी बेटियां और मेरी बीवी मेरे पाँव में गिर गई, रोने लगी, माफिया मांगने लगी। मेरी बीवी कहने लगी, मैंने तुमसे बहुत बार कहा हमें किसी के घर मुलाजमत करने दो, लेकिन तुम नहीं माने। मुझे पड़ोसन की एक औरत ने बताया था कि उसकी भाभी यूं बच्चों को पुराने कपड़े पहनाकर भीख मांगने जाती है। उसके पास अब ढेरों पैसे होते हैं, बच्चे भी पेट भर के खाना खाते हैं। मैंने सोचा कि तुम पूरा दिन ईंटें उठाते हो, रात को जब घर लौटते हो तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन हाथ में बस एक आटे का थैला होता है जो दो वक्त भी हमारी भूख को नहीं मिटा पाता। तुम्हें तुम्हारी मेहनत की उजरत वो नहीं मिलती जिसके तुम हकदार हो। इसलिए मैंने सोचा कि उन लोगों से ऐसे ही अपना हक ले लूं जिनके घर तुम्हारी उठाई हुई ईंटों से बनते हैं। मैंने क्या गलत किया है मुनव्वर? मेरे बच्चे जब भूख से बिलखते थे तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैंने कहा, आज पहली बार किसी गैर मर्द ने तुम्हारी तारीफ की है। तुम मेरा वहद असासा थी, मेरा कीमती खजाना। मैं खाली पेट भी इसलिए सो जाता था कि मेरी बीवी का हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। मैं तो अपनी मेहनत इसलिए दुगनी कर दी थी। फिर तुमने क्यों इस हुलिये में बाजारों में जाकर खुद को बेमोल कर दिया? तुम्हें क्या लगता है लोगों ने तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर तुम्हें पैसे दिए हैं? नहीं। फिर मैंने उसके फटे बाजू से झलकती उसकी गोरी रंगत की तरफ इशारा किया। ये सब देख कर दिए हैं। मेरी बातों पर वो नजरें चुरा गई थी, मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने बड़ी बेटी की तरफ देखा, फिर बीवी से कहने लगा, जानती हो मेरी बेटी किस अजियत से गुजर रही है? वो इन जुमलों को सह नहीं पा रही जो उसे चंद सिक्कों की बदौलत सुनने को मिलते हैं। मैं इतना गरीब पहले नहीं था जितना तुमने मुझे आज कर दिया है। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरे पास बैठ गई, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस मामले में कसूरवार कौन है? मैं, मेरी बीवी या हमारे हुक्मरान जो अवाम पर महंगाई की सूरत में ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं
घर की इज्जत बाजारों में मांगने पर मजबूर हो चुकी है। आप मुझे बताएं कसूरवार कौन है। नाजरीन, मजीद इस तरह के सबक अमवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।